Okay, so this is going to be the second lecture. This is going to be the second lecture of international relation. Okay, and first lecture has already been completed, and in three parts. It is already available on YouTube, and its PDF is already shared in the Telegram group. Okay, in the Telegram channel. So in continuation of this thing, we'll be now covering the second part of this current affairs. So let's start. So what I have done is the key all the topics, international organization that were part of the news. So I have highlighted key why that particular thing was in the news, and then great elaboration has been done on the static aspect of that particular news. Okay, so this is how we'll be proceeding for each and every news of international relation that was in the news in the last 1.5 years. So first is BRICS. Okay. So first is BRICS. So why BRICS was in news? The BRICS was in news because 16th BRICS summit. We know that every year one BRICS summit is happening, and that summit is rotating within the countries. So this time the BRICS event happened in the Kazan in Russia. Okay. So before we go into why this particular what happened in this particular session, we'll be discussing that what are the static aspect of the BRICS. So first thing is that the term BRICS, okay, was given in 2001 by Jim O'Neill, okay, and this person was working in the Goldman Sachs. This is important thing because you will often come across the name of this particular person, Jim O'Neill, okay. And why this particular person coined the term BRICS? Because he identified similar potential countries in the emerging sector. This was the reason that this person coined the term BRICS, because all these countries are in the same socio-economic level, as also the GDP level are comparable. So now first summit which founded the BRICS was in 2009. Okay, 2009, remember this year. And this happened in the Yekaterinburg in the Russia. This was the first meeting. Then in the third meeting, South Africa joined. This thing you should be knowing. Then important events are 2014, sixth meeting in the Fortaleza, Brazil, when new development bank, we'll be discussing about it, and the contingent reserve arrangements were done, and these were alternative to the World Bank and the IMF that we have discussed in the previous session. So this NDA, NDB, and the CRA are in opposite to World Bank and the IMF. Okay. Then in the 15th summit at Johannesburg, these countries, very, very important, these 5 countries joined the BRICS summit, and then BRICS expanded. Okay. And then further in the 2024 and 25, Indonesia joined, and then Argentina withdrew. So all these things are very, very important and highly relevant for the examination. So this is the basics of the BRICS. Now we'll be discussing about the various aspects for which the BRICS was in news. So first thing is the new development bank. New development bank. So you must keep in mind that the new development bank is in Shanghai, okay, in China. The headquarters of the new development bank is in China, Shanghai. And as I said earlier, that it was established in 2014 in the Fortaleza summit. You should be memorizing this fact, and this is in the Brazil. Okay, then what are the functions of this particular thing? First thing is that as we take loan from the World Bank for infrastructure development, same thing is done by the new development bank for infra development. Then it is alternative to the World Bank and IMF, and then it has equal voting rights. Okay, it has equal voting rights. So all these facts are very, very important for the prelims examination. Second is contingent reserve arrangement. Contingent reserve arrangement. So what is contingent? Contingent का मतलब होता है emergency. Okay, emergency. So in the emergency, whenever we need some fund, so BRICS can arrange funds for its own member or the fund members which BRICS as a whole is allowing to get funds. So what is the reserve amount? It is $100 billion. Keep this in mind. $100 billion. UPSC may change it to 2,000 or 1,000 or 100 or 10 or something. So it is $100 billion. Okay, liquidity pool. And China alone is dominant in it, which is providing nearly 41% for this thing. Then what is this? Same as IMF provides emergency funding for the balance of payment crisis, same thing is done by this contingent reserve arrangements. So you should be remembering this thing. Then as the countries fall for IMF, so here the contingent reserve arrangements
will help countries to avoid the IMF stringent requirements. So this is CRA. Then next we have BRICS Grain Exchange. BRICS Grain Exchange. This is about for food security. This is for food security. So it is Russia-led. See, the first thing was China-led. This is Russia-led. And this is a digital platform on which agricultural trade can be done amongst the members. So what is the benefit? It will help stabilize the food, ensure the food security, as I said earlier, and then bypasses the Western controlled commodity markets. Okay, this is the third thing, and this is important. So this is led by Russia. Okay, memorize this thing. Then remote sensing satellite constellation, not so important. Okay, so joint satellite network among the countries. This is not so important. The next very important thing is BRICS Pay. BRICS Pay, BCBPI, BRICS Pay. So what is this? This is blockchain based payment system. In the economic session, we saw that various countries across the world are adopting India's UPI system, but this particular thing is not related to UPI, it is related to blockchain. So this is very important, blockchain. Then digital settlement alternative to SWIFT. So we know that SWIFT is there amongst the led by BIS for international transaction. So BRICS is also providing an alternative to the BRICS system, SWIFT system, and it facilitates the trade in local currency and reduces the dependence on US and UE, European Union. So this is important. All the 5 points except this remote sensing satellite are very important and relevant for the examination. Next is the why this particular thing was in news. The first is membership has grown. So new members are Egypt, Ethiopia, Iran, Saudi, and UAE. So all these countries are Middle East or North African countries. So must remember all these things are Islamic countries. So all these have been incorporated in the BRICS. So keep this thing in mind, very important. I will repeat: Egypt, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia, and UAE. And then future candidates: Argentina recently withdrew, then Indonesia, Nigeria, and Venezuela. You must memorize the name of all these countries. Then de-dollarization effort has recently happened, and there is a proposal for BRICS reserve currency, which is still not finalized. It is still in discussion. So all these things are important. This particular table we have already discussed. Okay, so this particular thing, BRICS, which was in news, has been comprehensively discussed. And keep one thing in mind, that BRICS has no permanent secretariats. So UPSC might ask a question, say that Russia is the permanent chair, or the Brazil is the permanent chair, or the China is the permanent chair. So no country has the permanent chair of or secretariat for BRICS. It is rotating amongst the various member countries. Okay. So second news is about ASEAN. Okay, ASEAN, Association of Southeast Asian Countries. So let's say this is Indian subcontinent. Okay, so all the countries that are falling between this particular region are part of the ASEAN. ASEAN means East Asia. East Asia. So if you say कि this is complete Asia, तो ईस्टर्न पार्ट में क्या आता है? ईस्टर्न पार्ट में ईस्ट एशिया आता है, and then this is coming in the southern part, that is नॉर्थ साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो इसलिए इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको जॉइंटली वी से एज द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज. ओके, सो we'll be discussing this thing. So why this particular thing was in news? The reason is that Prime Minister of India, Honorable Prime Minister Modi ji, visited in the 21st ASEAN India Summit, ASEAN India Summit, which number? 21st number, and it happened in Laos PDR, okay, People's Democratic Republic of Laos, ठीक है, and this is the place where it happened. So क्या हुआ था कि मोदी जी ने पार्टिसिपेट कर दिया था, and for this particular thing, this is in news, and we are not talking about ASEAN here, we are talking about ASEAN India Summit. Okay, so India alone with all the 10 nations of the ASEAN had a meeting, and Modi ji visited this particular thing. So what are the various first we'll discuss about the basics of ASEAN. So ASEAN was established in 1967. Okay, 1967, remember this thing. Then the location is Bangkok, Thailand, and it emerged after the signing of ASEAN Declaration. जब भी कोई फर्स्ट मीटिंग होती है, किसी बॉडी का फाउंडेशन होता है ना, तो उस बॉडी का नाम
प्लस डेक्लेरेशन वर्ड रख दिया जाता है. तो सेम थिंग विद आसियान डेक्लेरेशन, where or also known as Bangkok Declaration because it happened in the Bangkok. And the initially number of members were 5 and later it expanded to 10. So these countries are Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, and Thailand. You don't need to remember these particular names, but you should be remembering the name of these 10 countries. Okay. Then Delhi dialogue is there. Okay. And this is an annual dialogue, which is track 1.5 forum for discussing the issues between the ASEAN and India. So what is track 1.5? Track 1.5 is there when the official plus non-official, both the people participate. Okay, official and non-official. So Delhi dialogue, if UPSC says the Delhi dialogue, what it is related to? So it is related to India ASEAN summit and it is track 1.5. Okay, then dialogue partner for this particular thing is Australia, Canada, China, India, European Union, Japan, Republic of South Korea, New Zealand, Russia, Russian Federation, UK, and US. So I'll tell you how to remember all these names. See, in the previous session, I have told you कि जहां जहां पर US जाएगा वहां पे कनाडा चला जाएगा, जहां पर जापान जाता है वहां पर कोरिया चला जाता है, कोरिया. जहां पर ऑस्ट्रेलिया जाएगा, जहां पर ऑस्ट्रेलिया जाएगा वहां पर न्यूजीलैंड पहुंच जाता है. ठीक है, इतना आप याद करोगे तो इफ ऑस्ट्रेलिया इज देयर तो न्यूजीलैंड पहुंच जाएगा, अगर यूएसए होगा तो कनाडा हो जाएगा, अगर जापान होगा तो कोरिया पहुंच जाएगा. इंडिया एंड चाइना एक दूसरे के अपोजिट में रहते हैं हमेशा आसियान में, तो अगर चाइना हो गया तो इंडिया उसमें चला ही जाएगा. एंड then we are left with European Union, Russia and United Kingdom. So these three things you should be remembering. जब तक यूके जो है यूरोपियन यूनियन का पार्ट था, जब से सेपरेट हुआ है तो यूके हैज टू बी काउंटेड सेपरेटली. ओके, देन व्हाट आर द वेरियस कंट्रीज इन द आसियान? These countries are Laos, PDR, जहाँ पे अभी की मीटिंग हुई है. Okay, then Vietnam is there, Philippines is there, Brunei Darussalam is there, Malaysia is there, Singapore is there, Indonesia is there, Thailand and Myanmar. So you should be remembering the name of all these countries. You should be remembering the capital of all these countries and how all these countries are north to south arranged, and then west to east arranged. तो ये सारा का सारा चीज आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए. ओके, सो next thing is why this particular thing was in news. So one is that ASEAN Regional Forum, ये बॉडी का नाम आपको पता होना चाहिए, and this was established in 1994 and इंडिया ने इसको 2 साल के बाद ज्वाइन करा. इसमें 27 लोग हैं, 10 ASEAN plus 10 dialogue partners, and then there are other members also, not so important. And objective is to dialogue on political and security aspect. So ASEAN Regional Forum, India is a member and India joined this thing in 1996. Then ASEAN Future Forum, तो ये प्रपोज करा गया है वियतनाम से. ठीक है, अभी बना नहीं है और जब बनेगा तो इंडिया विल बी इट्स फाउंडिंग मेंबर, इसका एक फाउंडिंग मेंबर होगा. ठीक है, देन ASEAN plus 3, तो हु आर दीज 3? ASEAन प्लस चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया. आई सेड कि जहां पर भी कोरिया होगा साउथ कोरिया होगा, तो जापान, जहां पर भी जापान होगा वहां पर साउथ कोरिया आ जाएगा. देन चाइना इज देयर, देन ASEAन इज देयर. देन EDMM एंड EAMF, दीज 2 बॉडीज आर देयर. तो ये मिनिस्ट्रियल लेवल पे मीटिंग्स होती है. तो ASEAN डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग प्लस एक्सपेंडेड ASEAN मैरीटाइम फोरम. ठीक है, सो इसका कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ASEAN रीजनल फोरम, ASEAN फ्यूचर फोरम एंड ASEAN plus 3, ये ब्रॉडली आपको पता होना चाहिए. एंड वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ASEAN? दिस इज इन जकार्ता, इंडोनेशिया. ठीक है, नाउ द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया हैज बीन चेंज्ड. देन इंडिया ASEAN रिलेशन कब से स्टैब्लिश हुआ है? इट स्टैब्लिश्ड इन 1992 जब पहली मीटिंग हुई थी. एंड देन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है ना इन दोनों के बीच में, दैट इमर्ज्ड इन 2012. ठीक है, सो किस किस कंट्री के साथ इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, किसके साथ सिंपल पार्टनरशिप है, किसके साथ बायलैटरल पार्टनरशिप है ना, किसके साथ कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप है, ये सब चीज ब्रॉडली पता होना चाहिए एग्जाम के लिए. देन व्हाट आर द वेरियस ज्वाइंट एक्सरसाइजेस बिटवीन इंडिया एंड ASEAN? So this is ASEAN India Maritime Exercise and then ASEAN Solidarity Exercise. तो दोनों में ASEAN वर्ड आ रहा है. दिस इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन. अगर ASEAN के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू लुक ईस्ट पॉलिसी, ठीक है, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी एटसेट्रा एटसेट्रा. Then East Asia Summit is also always in news and it is also related to ASEAN.
आशियान से बड़ा स्कोप है, क्योंकि आशियान इज ओनली अबाउट साउथ ईस्ट एशिया, एंड देन ईस्ट एशिया इज अ बिगर टर्म देन आशियान। ठीक है, तो इसमें क्या है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको भी अटेंड किया था 19th ईस्ट एशिया समिट, एंड इट हैपेंड इन द जकार्ता, which is the headquarter of this particular body located in the Indonesian country. देन इसका एस्टेब्लिशमेंट कहाँ पर हुआ था? 2005 में हुआ था। कहाँ पर? कुआलालंपुर। कुआलालंपुर कहाँ पर है? मलेशिया में है। ठीक है, कुआलालंपुर कहाँ पर है? मलेशिया में है। तो इसका फर्स्ट मीटिंग यहाँ पर हुआ है, एंड देन अभी जो रिसेंटली 19th मीटिंग है दैट हैपेंड इन दी जकार्ता, इंडोनेशिया। द नंबर ऑफ कंट्रीज आर 18। ठीक है, सो आसियान, आई सेड कि जो EAS है, EAS इज बिगर देन आसियान। ठीक है, तो ES बिगर क्या है? क्योंकि ये इस दिस इज कंप्लीट ईस्ट एशिया एंड दिस इज साउथ ईस्ट एशिया, दैट इज अ कंपोनेंट ऑफ दिस थिंग। तो यहाँ पे सिर्फ 10 ही कंट्री है एंड यहाँ पर 18 कंट्री है। सो हु आर दीज 18 कंट्रीज? 10 कंट्रीज ऑफ आसियान एज वी डिस्कस्ड हियर, एंड देन ऑस्ट्रेलिया इज देयर, चाइना इज देयर, जापान इज देयर, इंडिया इज देयर, न्यूजीलैंड आ जाएगा। जैसे ही मैंने कहा कि न्यूजीलैंड, अगर ऑस्ट्रेलिया है तो न्यूजीलैंड आ जाएगा, अगर जापान है तो साउथ कोरिया आ जाएगा। ठीक है, इंडिया है तो चाइना आ गया, बाकी कौन से कंट्री बचे? रशिया आ गया, एंड देन USA आ गया। ठीक है, फोकस क्या है? एवरीथिंग दैट UPSC इज गिविंग, एनवायरमेंट, एजुकेशन, फाइनेंस, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, देन वन मोर थिंग इज देयर, आसियान इंडिया ट्रेड्स इन गुड्स एग्रीमेंट, AITIGA, ठीक है। तो इसका 5th मीटिंग कहाँ पर हुआ है? जकार्ता में हुआ है। देन 2009 में इसको साइन करा गया था। ऑब्जेक्टिव इज रिड्यूसिंग द ट्रेड बैरियर्स एंड स्ट्रेंथनिंग द इकोनॉमिक प्राइस। ठीक है और इंडिया का ट्रेड स्टेटस क्या है आसियान के साथ? तो लास्ट टाइम आई सेड कि USA के साथ इंडिया जो है सरप्लस में है, ठीक है, एंड चाइना के साथ इंडिया लॉस में है। सो इन दिस पर्टिकुलर केस चाइना इज अहेड ऑफ इंडिया, अहेड ऑफ USA, ठीक है। एंड विद आसियान ऑल्सो क्या है, इंडिया जो है, आसियान जो है वो ट्रेड डेफिसिट में इंडिया से आगे है, मतलब इंडिया का जो है ट्रेड डेफिसिट चल रहा है किसके साथ? आसियान के साथ। ठीक है, सो आई होप ये दो चीजें आपको समझ आई होंगी अभी। नेक्स्ट टॉपिक इज जस्ट अ मोमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन। सो ये व्हाई दिस पर्टिकुलर थिंग वाज इन न्यूज? तो न्यूज में इसलिए था क्योंकि RBI ने जो है ना करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क फॉर 2024 से 27 फॉर 2024 टू 2027 अलाउ करा है किसके साथ? सार्क के साथ। तो करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क, ठीक है। So what is this currency swap framework? We have also discussed about this thing in the economic PYQ session and economic current affair में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। So let's discuss about this thing. So क्या है ये कि a contract where two parties agrees to exchange currencies at a fixed rate and re-exchange them later at a pre-agreed rate. तो कहने का मतलब ये है कि करेंसी स्वैप एग्रीमेंट ये चीज होता है कि लेट्स से कि द प्राइस ऑफ इंडियन रुपी इज, जो भी है इंडिया है एंड देन नेपाल है, तो इसके बीच में एक्सचेंज रेट में भी लेट्स से कि 21 रुपीज का या 27 रुपीज का चल रहा है। इन द कमिंग मे बी 1 ईयर ये प्राइसेस जो है फ्लक्चुएट करके 28 या 23 चला जाए समथिंग कुछ। तो इससे होगा क्या ना कि यहाँ के और वहाँ के ट्रेडर्स को जो है ना अनसर्टेनिटी रहेगी। तो फिर वो क्या करेंगे ना कि अगले 1 साल के लिए फिक्स कर देंगे कि ना तो हम विल बी गोइंग ऑन 21 ना 31, neither will be going on 21, let's fix a price 25 for the next 1 year, ठीक है, 1 ईयर के लिए। और होता क्या है ना कि when we are talking about the 1 ईयर, तो 1 ईयर के ड्यूरेशन में जो होता है ना किसी भी एक, जस्ट मोमेंट, 1 ईयर के ड्यूरेशन में जो है ना कोई भी एक पार्टी ना तो कंप्लीटली प्रॉफिट में रहती है ना ही कंप्लीटली लॉस में रहती है। तो ओवरऑल दिस इज अ विन विन कंडीशन फॉर ऑल द पीपल, ठीक है। सो दिस इज पार्ट ऑफ द करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। किसके साथ हुआ है? सार्क के साथ हुआ है। और किसने अनाउंस करा है? इंडिया के RBI ने अनाउंस करा है इस चीज को, ठीक है। सो बिफोर वी गो इनटू द करंट अफेयर एस्पेक्ट, फर्स्ट विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल कि सार्क का बेसिक्स क्या है। ठीक है, तो सार्क वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1985, ठीक है, 1985 इमीडिएटली आफ्टर द डेथ ऑफ इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी का डेथ कब हुआ था? 1984 में हुआ था। उसके नेक्स्ट ईयर क्या हुआ रहा है, बस याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं। उसके नेक्स्ट ईयर क्या हो रहा है? हमारा सार्क का फाउंडेशन हो रहा है। कहाँ पर? ढाका में हो रहा है। ढाका में कहाँ पर? बांग्लादेश में। ढाका बांग्लादेश, ठीक है। इसको प्रपोज किसने किया था? बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट थे उसमें जियाउर रहमान,
ठीक है। तो दिस पर्सन प्रपोज दी दिस पर्टिकुलर थिंग सार्क। जैसे कि मैंने बताया था कि ब्रिक्स को किसने प्रपोज किया था, तो जिम ओ'नील ने प्रपोज किया था 2001 में। तो ऐसे ही हमारे सार्क को किसने प्रपोज किया है, तो प्रेसिडेंट जियाउर रहमान ने कब इसको प्रपोज करा, 1984 में, ठीक है। देन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, तो इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पर हुआ था, फर्स्ट मीटिंग एंड इस्टेब्लिशमेंट वाज इन बांग्लादेश ढाका, बट इसका जो कैपिटल है दैट कैपिटल इज इन नेपाल काठमांडू में, ठीक है। तो ये ध्यान रहना चाहिए। एंड कब स्टैब्लिश हुआ है, 1987 में स्टैब्लिश हुआ है। अगेन आई विल रिपीट कि जो इसका फर्स्ट मीटिंग हैपेंड इन दी ढाका बांग्लादेश, बट द हेडक्वार्टर इज इन नेपाल काठमांडू, ठीक है। इसका मोटो क्या है, डीप इंटीग्रेशन फॉर पीस एंड सिक्योरिटी, नॉट सो इम्पोर्टेंट। देन ऑफिशियल लैंग्वेज इज इंग्लिश। देन व्हाट आर द वेरियस कंट्रीज, द कंट्रीज Afghanistan, Bangladesh, then Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, and then Sri Lanka. So all these countries are listed here. This is Afghanistan, then Pakistan, then India, Nepal, then Bhutan, then we have India, then we have Bangladesh. This is also India. Then you have a छोटा छोटा सा country मान लो, that country is what, Maldives, ठीक है। So all these countries are part of it. एक चीज दिमाग में रहे कि म्यांमार इज नॉट पार्ट ऑफ व्हाट, म्यांमार इज नॉट पार्ट ऑफ दिस सार्क, ठीक है। म्यांमार सार्क का पार्ट नहीं है, इतना आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। बट म्यांमार क्या चीज है, म्यांमार इज दी व्हाट, ऑब्जर्वर कंट्री है इस चीज का, ठीक है। देन पॉपुलेशन, जीडीपी, एरिया, ऑल दिस थिंग्स आर नॉट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक चीज दिमाग में रखो कि 3% जो है ना पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है ना, दैट इज 3% नियरली। इसमें जो कंट्रीज आ रही है ना, दिस कंट्रीज आर मोस्टली इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सो इंडियन का सब कॉन्टिनेंट इज नियरली 3% ऑफ द वर्ल्ड। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन इसमें क्या चीज है, डिसीजन जो होता है ना यूनानिमिटी से लिया जाता है, यानी कि कंसेंसस से लिया जाता है। एंड दिस इज द रीजन कि सार्क बार बार फेल हो जाता है, क्योंकि डिसीजन इसमें कंसेंसस से ले रहे हैं। सो इंडिया इज गोइंग वन साइड एंड देन पाकिस्तान इज गोइंग वन साइड। दिस इज द रीजन कि सार्क जो है ना इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। व्हाट आर द वेरियस मेजर इनिशिएटिव विद इन द सार्क, सो दिस इज सेफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। देन सार्क का फूड बैंक है, देन सेटिस है फॉर ट्रेड इन सर्विसेज, सर्विसेज के अंदर ट्रेड करने के लिए, एंड देन साउथ एशियन सैटेलाइट है। तो ये आपको ब्रॉडली पता होना चाहिए। दिस इज मेनली फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, प्री के लिए नहीं है ये चीज। देन करंट स्टेटस क्या है कि अभी 2016 के बाद से जो है ना, दिस करंट स्टेटस, दिस सार्क इज रिडंडेंट हो गया है सार्क। रीजन इज कि इंडिया पाकिस्तान टेंशन है, देन अफगानिस्तान का क्राइसिस है, और अफगानिस्तान की जो एंट्री हुई ना सार्क में, तो उसकी वजह से भी टेंशन था, क्योंकि अफगानिस्तान इज नॉट एग्जैक्टली पार्ट ऑफ साउथ एशिया। सम पीपल कंसिडर दैट अफगानिस्तान इज पार्ट ऑफ मिडिल ईस्ट, okay। then alternative क्या है इसका, because SAARC is failing, so people are also focusing on the BIMSTEC। so BIMSTEC क्या है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। then what are the major principle of SAARC, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें यूनानिमिटी बेस्ड डिसीजन लिया जाता है, तो ऑल डिसीजन रिक्वायर कंसेंसस, ठीक है। और क्योंकि कंसेंसस होगा तो जो भी कंट्री एक दूसरे के साथ इशूज में है, तो वो अगर वोट आउट करेगी तो पूरा का पूरा प्रोग्राम जो होता है ना उसमें फेल हो जाता है, ठीक है। तो सार्क का एक इनोवेटिव मैकेनिज्म है कि किसी भी दो कंट्रीज की जो बायलेटरल डिस्प्यूट्स होंगे ना, वो सार्क के अंदर डिस्कस नहीं हो सकते हैं। लाइक इंडिया एंड श्रीलंका है, तो इसका कच्चा इसका जो है आइलैंड का जो इशू चल रहा है ना, दैट कैन नॉट बी डिस्कशन इन दी सार्क मीटिंग। सिमिलरली इंडिया पाकिस्तान का मैटर कैन नॉट बी डिस्कस ऑन दी सार्क प्लेटफॉर्म। सो उसके बाद क्या है कि 2016 के बाद से इसका कोई मीटिंग नहीं हुआ है अभी तक। और इंडिया जो है ना लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, सार्क का जो 70% है ना, 70% पैसा इंडिया देता है। लास्ट टाइम आई ऑल्सो टोल्ड कि जो हमारा पीस कीपिंग फोर्स है, तो पीस कीपिंग फोर्स में भी नियरली 60% ऑफ द फोर्सेस कौन देता है, इंडिया की तरफ से जाता है। एंड सार्क में 70% कहाँ से जा रहा है, इंडिया में जा रहा है, इंडिया से जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ना, तो इसके अलावा क्या चीज है, इंडिया का जो है ना करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किस किस के साथ है, तो एक तो ब्रिक्स के साथ हमारा कंटिजेंट रिजर्व अग्रीमेंट है। देन इंडिया जापान के साथ सीएसए है हमारा 75 बिलियन का, इंडिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट के साथ है, एंड देन इंडिया श्रीलंका के साथ। तो इन चारों कंट्रीज के साथ हमारा जो है ना सीएसए अभी फंक्शनल है। सो एंड दिस सीएसए वाज द रीजन कि हमारा ये सार्क में जो सार्क जो है अभी न्यूज में था। न्यूज में क्यों था, क्योंकि आरबीआई ने भी रिसेंटली अनाउंस करा है इस चीज को, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज बिमस्टेक। सो अभी मैंने बताया कि जो सार्क जो फेल हुआ है ना,
तो उसका जो एक ऑल्टरनेटिव है, दैट ऑल्टरनेटिव इज ब्रिक्स। ठीक है, सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ब्रिक्स? ब्रिक्स इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, TEC, ठीक है, मल्टी सेक्टोरल यहाँ पर आ गया। देन बे ऑफ बंगाल, तो इसमें से एक ही आई को, BI को करोगे तो यहाँ पे फिट हो जा रहा है। तो बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, तो एक जो वर्ड है बी, दैट इज ओनली एक्स्ट्रा है, बाकी बिम्स्टेक जो है एग्जैक्टली फिट होता है यहाँ पर इस फुल फॉर्म में। सो न्यूज में क्यों था ये? क्योंकि बिम्स्टेक अक्वायर्ड लीगल पर्सनालिटी एज इट्स चार्टर केम इन फोर्स इतना। तो अभी क्या है ना कि बिम्स्टेक एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन था, अभी एक लीगल पर्सनालिटी की तरह जो है ना, इसका चार्टर में जो है, चार्टर के थ्रू ये अभी एक लीगल पर्सनालिटी की तरह बन के आया है बाहर। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि ये रिसेंटली जो है ना 5th समिट हुआ है 2022, 5th समिट जो है 2022 में हुआ था, एंड रेटिफिकेशन कंप्लीट कब हुआ है? 2024 में हुआ है। जैसे कि सार्क है, सार्क का एनुअल मीटिंग नहीं होता है हर बार, तो सिमिलरली बिम्स्टेक का भी रेगुलर मीटिंग नहीं हो पाता है। ठीक है, दिस बॉडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट द लीडर्स आर नॉट मीटिंग एनुअली। ठीक है, so all these things are not much important. Key principle, all these things, whatever is important, I'll be discussing. See, what are the major focus area? Trade, environment, climate change, security, everything under the sun is the focus area of this particular BIMSTEC. ठीक है, इसके बाद मेजर प्रोजेक्ट क्या क्या है? मास्टर प्लान फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग नॉट इम्पोर्टेंट। वन थिंग इज ज्वाइंट एक्सरसाइज, सो बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज, DMAX, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए कि जो ये जो कंट्रीज है ना आपस में, इनका आपस में एक मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहा है, एंड दिस थिंग इज आल्सो हेल्पिंग इन द डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, सो व्हाट आर द वेरियस कंट्रीज इन द बिम्स्टेक? सो वन इज बांग्लादेश, देन भूटान, देन इंडिया, देन नेपाल, श्रीलंका। ठीक है, सो ये जो 3 कंट्रीज है ना, दिस कंट्रीज आर आल्सो पार्ट ऑफ सार्क। ठीक है, एंड दीज कंट्रीज आर पार्ट ऑफ आसियान, ये आसियान के पार्ट है। तो बिम्स्टेक क्या करता है? बिम्स्टेक जो है ना एक रोल प्ले करता है कि साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, इन दोनों को कनेक्ट करवाने का काम करता है। एंड कौन कनेक्ट करवा रहा है? म्यांमार एंड थाईलैंड की हेल्प से ये काम हो जाता है। some countries are falling in this category, some countries are falling in this particular areas. So what are the various members of this SARC? So here we have Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, India. You can map all these things on this particular map. Okay. Then what is the significance of this thing? So alternative regional platform emphasizing economic and technical cooperation in the Bay of Bengal region. जो SARC है, चाहे जो बाकी रीजनल कॉपरेशन इंस्टीट्यूट है ना, ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके पैरेलल ये काम करता है और अपने ही ये चीजों में रहता है कि वी डोंट हैव टू डिपेंड अपॉन द अदर बॉडीज। देन ऑल दिस थिंग, ज्योग्राफिकल कवरेज कितना है? 1.7 बिलियन पीपल, नियरली 22% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज लिविंग इन दिस पर्टिकुलर एरिया, एंड दिस इज 14 बिलियन। तो पूरा आसियान का जो GDP है बिम्स्टेक का, दैट इज 4 बिलियन, एंड इसमें मैक्सिमम जो है वो इंडिया का है। ठीक है, मैक्सिमम इज इंडिया। ठीक है, एंड कंपैरिजन को हम किसके साथ करते हैं? सार्क के साथ मेनली जो होता है ना, बिम्स्टेक को कंपेयर करा जाता है। बट द प्रॉब्लम विद द सार्क एंड द बिम्स्टेक इज कि दोनों के एनुअल मीटिंग्स जो है इतने रेगुलरली नहीं होते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट वी हैव इज क्वाड। तो क्वाड इज ऑलवेज इन न्यूज। ठीक है, तो क्वाड का क्या है कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। सो ये आपको पता होना चाहिए। सो हियर इसका ओवरव्यू क्या है कि वाई न्यूज में क्या था कि यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि जो यूएस का जो लोकसभा है ना, यूएस का लोकसभा हैज पास्ड अ लॉ स्ट्रेंथन यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान। ये जो 4 कंट्री कौन है? दीज आर द 4 कंट्री विच आर पार्टिसिपेंट ऑफ द क्वाड ना। तो स्ट्रेंथनिंग द यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान कोऑपरेशन और स्ट्रेंथनिंग द क्वाड एक्ट। ठीक है, तो यूएस के लोकसभा ने जो है ना एक एक्ट पास करा है जिसमें दे आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेंथनिंग बिटवीन दीज 4 मेजर कंट्रीज। ठीक है, देन हु आर द मेंबर्स ऑफ क्वाड? सो दिस इज अगेन यूएसए, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सो इसमें से एक चीज ध्यान रहे कि यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, दीज कंट्रीज आर पैसिफिक कंट्रीज। ठीक है, एंड इंडिया जो है पैसिफिक कंट्री नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक एसोसिएशन। तो क्वाड क्या चीज है? क्वाड इज इंडो पैसिफिक। ठीक है, ये बात दिमाग में रहे। देन रिसेंट डेवलपमेंट क्या है? एज आई सेड अर्लियर कि यूएस हाउस पास्ड स्ट्रेंथनिंग द क्वाड एक्ट। अगर ये न्यूज में आता है कि स्ट्रेंथनिंग द क्वाड एक्ट कहाँ पर था, किस चीज से रिलेटेड था, तो यूएस के लोकसभा ने एक पास करा है एक्ट, दिस वाज इन 2024।
ठीक है, और इंडिया के पीएम ने अटेंड किया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, कोऑर्डिनेटर लीडर समिट इन दी विलमिंगटन यूएसए। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देन विलमिंगटन डेक्लेरेशन, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेगा लेगा कि विलमिंगटन डेक्लेरेशन इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज और वाज रिसेंटली इन द न्यूज। तो ये किस चीज से रिलेटेड है? ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? ये क्वाड से रिलेटेड है। ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू क्वाड। तो क्या क्या हुआ इसके अंदर? क्वाड कैंसर मॉनसून बना है इसके अंदर, देन क्वाड पोर्ट्स ऑफ फ्यूचर पार्टनरशिप सस्टेनेबल इंफ्रा के लिए, मैत्री फॉर मैरीटाइम ट्रेनिंग इनिशिएटिव, एंड देन क्वाड एट सी ऑब्जर्वर मिशन। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, इसको याद। बट सिंपली अगर विलमिंगटन डिक्लेरेशन अगर न्यूज में आता है तो दिस इज रिलेटेड टू क्वाड। ठीक है, इतना पता होना चाहिए, यूपीएससी इसके डिटेल में नहीं जाएगा आपके सामने। ठीक है, फ्यूचर प्लान्स क्या है? 2025 का जो क्वाड समिट है, यानी कि इस साल का क्वाड समिट कौन होस्ट करेगा? इंडिया इसको होस्ट करेगा, एंड देयरफॉर दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको जो है ना 20 साल हो जाएगा कॉपरेशन को इन 2005। ठीक है, मार्क्स 20 years of quad cooperation. India will be hosting this particular thing, and this is very very important for mains examination and the prelims examination. ठीक है, स्ट्रेंथन क्वाड है तो 4 ये सारी चीजें जो है ना कॉमन थिंग्स आर देयर। व्हाट आर द स्ट्रेटेजिक एरियाज? तो मैरीटाइम, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, रीजनल स्टेबिलिटी, वेरी वेरी सिंपल थिंग्स। देन क्वाड का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो एक तो एनुअल लीडर्स मीटिंग होती है, देन मिनिस्टीरियल मीटिंग होती है, एंड देन स्पेशलाइज्ड वर्किंग ग्रुप होती है। तो बेसिक वर्क जो होता है वो इस लेवल पर होता है, देन इसका फॉर्मलाइजेशन यहाँ पर, एंड फाइनल शेप एंड लीगलाइजेशन जो होता है वो लीडर समिट में होगा। ठीक है, देन इसके अलावा बेसिक थिंग्स इज फॉर्मेशन कब हुआ है? 2004 में, एंड इसका जो रिवाइवल हो गया है ना, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2004 बाय दिस थिंग जापान प्राइम मिनिस्टर। बट जो फॉर्मल स्टार्टिंग हुई है ना, दैट स्टार्टेड इन 2017। ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज इंडो पैसिफिक, एज आई सेड कि इंडिया एंड देन 3 कंट्रीज यूएसए, जापान एंड देन ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आते हैं। देन काउंटर किसको करना है? चाइना को काउंटर करना है, एंड दिस इज नॉन मिलिट्री, कीप दिस थिंग इन माइंड। दिस इज व्हेनेवर इंडिया इज देयर, जो भी पार्टनरशिप होगा वो नॉन मिलिट्री ही होगा, कीप दिस पर्टिकुलर थिंग इन माइंड। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। सो जस्ट गिव मी अ ब्रेक ऑफ 2 minutes, इसके बाद से विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क।